D4 देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। इस विधानसभा क्षेत्र से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों से भटक चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपमानित कर रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि चन्नी मन्नी हनी घोटालों के बादशाह हैं, इसलिए चन्नी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मजीठिया ने सिद्धू को ठोको ताली कहकर भी संबोधित किया और कहा कि सिद्धू की परफॉर्मेंस जीरो है। मजीठिया ने कहा कि 18 साल से इस विधानसभा हल्के का विकास नहीं हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी हार कबूल ली है और उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ही ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन रेत माफिया शराब माफिया को टिकट नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान रहते ही दी गई। उन्हें काली कहता कि कठपुतली, उन्हें काली कहता कमजोर, और जिस दिन ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡਣ, ਆਪ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਮੰਨੀ ਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਤਾਜ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਮਨੀ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਚੰਨੀ, ਹਨੀ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਚੰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਨੀ ਮੰਨੀ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਖੜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ ਕਬੂਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਹਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ 20 ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। 6 ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, 10 ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ, ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫੇਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡੀ ਬਕਲਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਆਪ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਛੜਵੀਰ ਆ ਜਾ ਛੜਵੀਰ। ਔਰ 150 ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ।
मगर सब दी धज्जियां उड़ाउंदे होए बगैर नंबर तो चिट्ठी जारी करी जा रहे कि मैं किहड़ा प्रधान रहना हुण ते 20 तरीक टपाइए लोकां दा मूर्ख बनाइए ते पार चलीए। ये हालात बन गए। मैं कल सुन रहा सीगा सिद्धू साहब दे ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਆਲਾ ਦਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਫਟ ਜਿੰਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ 120 ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਟ नवजोत सिंह सिद्धू की प्रधानगी हेठ मिली है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी विक्रम सिंह मजीठिया पर निशाना साधा। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा कि ऊपर वाले तो ये चाहते हैं कि कोई कमजोर मुख्यमंत्री हो जो इनकी ताल पर ताता थैया नाचे, फिर ऊपर से कहेंगे नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब की सभी समस्याओं का हल पैसा है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को छोड़ दिया जाए तो पैसे के बिना कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਬਾਤੀ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਐਤਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਬਹਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਤਾ ਥਈਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਾਂ ਕਦਰਦਾਨ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਆ ਮਾਸਟਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਟਮਕਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾहे ਤੁਸੀਂ ड्रग बेच रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ राजनीति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਦਾ बन चुकी है। एक कार्यक्रम के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू और आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने जफ्फी डाली और दोनों ही नेताओं ने पर्यावरण को बचाने की बात भी कही है। इस बार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका ऐलान 6 फरवरी को 2 बजे किया जाएगा। राहुल गांधी वर्चुअल तरीके से रैली को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेंगे। इसकी जानकारी पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने दी है। आपको ये बता दें कि लगातार पंजाब कांग्रेस में ये बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस पार्टी पंजाब की लोगों की भावना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना, कांग्रेस के नेताओं की भावना को जानकर राहुल गांधी जी 6 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे, चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। जब राहुल गांधी पंजाब दौरे पर आए थे तो नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से यह दबाव बनाया गया था कि इस बार कांग्रेस को मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान देना चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था और वाह बटोरी थी कि पहली बार ऐसा हुआ है पंजाब के इतिहास में कि किसी अनुसूचित जाति के सिख चेहरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। अब कांग्रेस के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित न किए जाने से यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस दलित विरोधी है।
इसलिए कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं है और अब यह भी सियासी माहिरों की नजर टिक गई है 6 फरवरी पर कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ऐलाना जाता तो उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वे लगातार ये कहते रहे हैं कि वे दर्शनी घोड़ा नहीं बनेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से अवैध रेत खनन मामले में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को जालंधर कोर्ट ने 8 फरवरी तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि देर रात ईडी की ओर से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ दिन पहले ईडी की रेड के दौरान उनके घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी, जिससे सियासत में भूचाल आ गया था। रिमांड के पर रहने के दौरान वह रोजाना 2 घंटे अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकेंगे। कोर्ट में बहस के बाद हनी को 4 दिन का रिमांड दिया गया है। आपको ये बता दें कि हनी को गुरुवार को ईडी ने जालंधर में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उससे करीब 7 से 8 घंटे पूछताछ की गई। ईडी संतुष्ट नहीं हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी की गिरफ्तारी को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। पूरी कांग्रेस इस समय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदलाखोरी बता रही है। वहीं विरोधियों ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को घेर लिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 111 दिन में ही कमाल कर दिया। अगर 111 दिन में एक भतीजे ने इतनी दौलत हासिल कर ली तो आप चन्नी साहब ने कितनी दौलत 111 दिन में कमाई होगी। और अभी ये तो सिर्फ 111 दिन का ट्रेलर चन्नी साहब ने दिखाया। अगर 5 साल चरणजीत सिंह चन्नी साहब पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रह जाते तो सोचिए कितनी बेशुमार दौलत और पैसा ही अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए इकट्ठा कर लेते। चन्नी साहब कहते हैं कि मेरा भतीजा हनी एक साधारण आदमी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ फैमिली फंक्शंस में, शादी ब्याह में मुझे मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि भूपिंदर सिंह हनी जो चन्नी साहब के भतीजे हैं, उन्हें सीएम सिक्योरिटी से कमांडोज 10-10 कमांडोज की सिक्योरिटी दी गई थी। पायलट व्हीकल सिक्योरिटी के लिए उनको मुहैया कराई गई थी। अगर वो इतना आम आदमी होता और चन्नी साहब से इतना दूर होता तो क्या उसे 10-10 कमांडो और पायलट व्हीकल, पायलट जीप दी जाती। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भदौर की चुनाव रैली में यह कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को 4-5 साल लग जाते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 111 दिन में ही कमाल कर दिया। इतने दिन में इतना करप्शन कर दिया, इसलिए अब ईमानदार सरकार चाहते हैं तो इस बार मौका आम आदमी पार्टी को दिया जाए। उन्होंने 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में, और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया। इतना करप्शन किया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लोग देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को एक ईमानदार सरकार चाहिए। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोटा मोदी कहकर उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से सत्ता में आने से पहले कई वायदे किए गए थे, वह वायदे अब कहां हैं। केजरीवाल जिन लोगों योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रसाद भूषण की कस्में खाते थे, अब वह उनके साथ क्यों नहीं है? क्या ये उनके ढोंगी होने का सबूत नहीं है? सुरजेवाला ने भाजपा पर पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मदद करने का भी आरोप लगाया। सुरजेवाला ने यह कहा कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को सत्ता से हटाने के लिए केजरीवाल ने लोकपाल लाने का वायदा किया था। वह लगातार दो बार कार्यकाल सत्ता में है उनका। अब लोकपाल बिल कहां है? उन्होंने पारदर्शिता और ईमानदारी की शपथ ली थी, लेकिन वो भी कहां है? नमस्कार साथियों, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नौटंकी पंजाब में चुनाव से 15 दिन पहले शुरू हो गई है।
इलेक्शन डिपार्टमेंट बीजेपी का जो है, जिसे ईडी के नाम से पुकारा जाता है, अब मैदान में उतर आया है। पंजाब और पंजाबियों के ऊपर किसान आंदोलन क्या समर्थन देने के लिए हमला बोला जा रहा है और फर्जी रेड और फर्जी गिरफ्तारियों से मोदी जी अपनी झेप मिटा रहे हैं। ये हमला पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर नहीं, ये हर उस पंजाबी पर हमला है जिसने किसान आंदोलन में अडिगता से किसानों, मजदूरों, गरीबों का साथ दिया था। 6 साल पुराने केस के अंदर चन्नी जी के रिश्तेदार को उलझाया जा रहा है और 33 साल पुराने केस में सिद्धू जी को जबरन भटकाया जा रहा है। ये चुनाव भटकाने का तरीका है। और भारतीय जनता पार्टी जो एक सीट भी पंजाब में नहीं जीत रही, अब अपनी बी टीम अरविंद केजरीवाल की मदद के लिए चोर दरवाजे से मैदान में ईडी के माध्यम से आ गई है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर रेड नहीं करेंगे, उसके मंत्री सत्येंद्र जैन पर रेड नहीं होगी, नाम उनका लिया जाएगा, क्लीन चिट भी उनको दी जाएगी, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है जिसने मोदी जी के तीनों काले कानूनों में से पहले काले कानून को नोटिफाई किया था। अब नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल का एहसान उतार रहे हैं, पर पंजाब के लोग ना झुकेंगे, ना थकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। पंजाब के लोगों के आशीर्वाद से, पंजाबियों और पंजाबियत के आशीर्वाद से एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस पंजाब के लोगों की सेवा कर पाएगी। मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी का साझा षड्यंत्र फेल हो जाएगा, यही सच्चाई है। सुरजेवाला की ओर से केजरीवाल को छोटा मोदी बताए जाने पर केजरीवाल ने भी इस पर पलटवार किया है और कहा है, इन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं सुरजेवाला के सपनों में भी भूत की तरह आता हूं, 24 घंटे उनके दिमाग पर हावी रहता हूं। अगर कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए काम किया होता तो मुझ जैसे आदमी को राजनीति में आने की जरूरत ही नहीं थी। उनको कहने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो एक्चुअली उनके सपने में भी मैं भूत की तरह आता हूँ। रात को वो सोते हैं ना तो 24 घंटे उनके दिमाग में मैं ही घूमता हूँ। कभी कुछ कहते हैं, मुझे खूब गालियां देते हैं ये लोग। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मुझे गाली देने की बजाय जनता के लिए काम करें। अगर वो जनता के लिए काम करेंगे तो केजरीवाल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। आज हमें लोग क्यों पूछते हैं, हमें क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि हम जनता का काम करते हैं। हम उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, हम उनके परिवार को अच्छा इलाज देते हैं, हम उनको बिजली देते हैं, इसीलिए लोग हमारे। तो आप भी करो ना। केजरीवाल को गाली देने से क्या फायदा है? मैं छोटा मोदी हूँ, बड़ा मोदी हूँ, फलाना हूँ, क्या फायदा फर्क है? आज के लिए इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।